Hi everyone, good evening. Yeah, hi Rudra, hi Harsh, good evening Pratmesh, good evening Kushal. Yeah, hi Tanmay, evening Sahil, evening Samyak. All right. So केमिकल बॉन्डिंग अभी तो स्टार्ट हुआ है. तुम अभी से पूछ रहे हो और कितने लेक्चर. दोस्त पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है. डोंट वरी. कब है TWT? अच्छा, इस संडे को. देखते हैं कितना हो पाएगा तब तक. अकॉर्डिंगली आप लोग TWT दोगे. अच्छा, 3 ईयर बैच का है, तुम्हारा नहीं है. हाँ, बच्चों का क्या है, मनीषा के सब टेस्ट तो दिखते हैं, जो है वो देते रहो. ऑलराइट, डोंट टेक प्रेशर. आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. चलो आगे का पढ़ते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशंस डिस्कस करे थे s और p ऑर्बिटल्स के, and we were able to summarize them. Then in the last class we introduced d orbital hybridization also, and उसमें I had told you that it is kind of controversial. Reason being that d orbital का energy level is not something which is similar to s and p. However, the older theories do take d orbital hybridization into account, and that is what we are going to now work with. Now, what is the explanation for taking the d orbital hybridization? What is the justification that is given in the older literature? वो आप एक बार समझ लो. एंड उस जस्टिफिकेशन के पीछे का जो बैकग्राउंड है, उस जस्टिफिकेशन के पीछे की जो थ्योरी है, इट विल इनकॉर्पोरेट सर्टेन एग्जांपल्स लाइक दिस कि PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है बट PH5 नहीं मिलता. It's not that phosphorus can't expand its octet. Phosphorus can expand its octet, but it is not doing so with, say, hydrogen. SF6 मिल रहा है, but SH6 नहीं मिलता है. And इसके पीछे भी there is nothing like repulsions का reason और large groups का reason, right? जैसे अपन ने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था कि Cl(I7) नहीं मिलता है, right? इसके पीछे हमने क्या रीजन दिया था कि iodine is too large in size to accommodate 7 iodines around a chlorine atom is not possible. So we gave the reason of repulsions. We gave the reason of repulsions, and we gave the reason of you can say bulkiness. However, यहाँ पर तो वो रीजन भी एप्लीकेबल नहीं है. Like ClF3 एग्जिस्ट करता है बट ClH3 नहीं मिलता है. Now, अब यहाँ पे नोटिस करना, what was the justification for such examples that was provided. So when you look into the theory, when you look into the explanation that talks about d orbital hybridization, तो यहाँ पर नोटिस करना that as such the drawback is that d orbitals are too high or too large in energy to mix with s and p orbitals. However, the explanation that is given is of the following nature, that when highly electronegative atoms like fluorine, chlorine, oxygen, they approach the central atom. जैसे यहाँ पर आप इन examples में भी देख रहे हो, chlorine, fluorine, these are electronegative atoms. When they approach the central atom,
they induce a partial positive charge on the central atom. Now what this does is this helps in shrinking the orbitals. It helps in shrinking the size of d orbitals more so. And what it does is it brings the size and energy of d orbitals closer to s and p orbitals to allow the mixing to happen. This is the rationale, or this is the justification that is given. Now, of course, आप लोगों को completely समझ में नहीं आएगा, because as I said that the theory is controversial in nature, but it is an older version only that we'll have to study. That आपने notice भी करा होगा ना, जैसे left to right हम लोग periodic table में जाते हैं, right, तो size decrease कर जाता है. क्यों? Because the effective nuclear charge increases. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी like ये कमेंट किया जा रहा है कि एक सेंट्रल एटम पर, राइट, यू हैव से फॉस्फरस का सेंट्रल एटम, राइट, एंड इट इज अप्रोच्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स, राइट, then what they will do is that they will take the electrons away from the phosphorus atom and induce a partial positive charge on it, as compared to a situation where it was present in isolation. Because of this partial positive charge, there is this shrinking of orbitals that happens around the nucleus of phosphorus. And this causes the d orbitals to contract much more as compared to s and p orbitals. Now, again, no need to get into much of detail of it, because as such, आपको d orbital hybridization पढ़ना है बस, and उसमें आगे जाना है. Like you'll have to understand कि okay, for some reason d orbital hybridization is being considered, and let's see what that hybridization is looking like. So यहाँ पर आप notice करना, हम लोग d orbital को include करता हुआ hybridization discuss कर रहे हैं. We call it sp3d hybridization. Now, what is sp3d hybridization? 1s, 3p and 1d orbital mix to give 5 sp3d hybrid orbitals. And how will these hybrid orbitals be arranged so that repulsions between them are minimized? The 5 sp3d orbitals are going to be arranged in a TBP, trigonal bipyramidal geometry. अब यहाँ पे एक key piece of information notice करना, that in this case, in case of sp3d hybrid orbitals, ये जो TBP geometry बनेगी, इसमें what I'm going to come across, as you would have also thought about it, that not all hybrid orbitals will be identical. ऐसा क्यों होगा? आप यहाँ पे नोटिस करना with this example of PCl5. Now PCl5 में you have phosphorus in ground state 3s2 3p3, but because 5 क्लोरीन है, 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो क्लोरीन अपना phosphorus अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा. Now 3s 3p, और अब इसको अगर 5वां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन किधर एक्साइट होगा? In the next available energy orbital, which is 3d. Right, so 3s के बाद में ये 3d में चला जाएगा. Now again, the justification behind such excitation is from the fact that chlorine is highly electronegative, right, and it is able to provide energy related to such excitations, right. Again, same reason that pH5 is not found is because hydrogen isn't that electronegative to cause this excitation, to take the electrons from 1s or from s to d.
तो यहाँ पर PCl5 या PF5 electronegative atoms are around phosphorus, this excitation can happen. And this is not something which is, as I said, ki I am going to ask you to predict. This is something which I am asking you to understand. Like आपको थोड़ा ना पता था कि pH5 नहीं मिलता है, मैं अभी बोल देता कि pH5 मिलता है तो आपको मानना भी पड़ता, right? So pH5 नहीं मिलता है is an observation which I am telling you that this is something which is not found, whereas PCl5 is found. So the underlying reason are as follows, in which one of the reasons is that to excite the electron to a higher energy orbital like 3D, a more electronegative atom when it approaches, then the energy provided can be used for such kind of excitation. Now, once this happens, S, P and D K orbitals can intermix with each other and form sp3d hybrid orbitals. Now, अब यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा incorrect representation put किया है because actually में not all sp3 or sp3d orbitals are identical in terms of energy. Right? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बस simplified version put किया है, but this is not something from the point of view of energy. Not all sp3d hybrid orbitals are same energy. In fact, यहाँ पर आप notice करना which d orbital goes in hybridization, that also is going to play a role over here. So notice karna, again, when we are going to talk about sp3d hybridization, this is important to understand that sp3d hybridization is a combination of sp2 plus pd. Now ये sp2 में S, Px and Py orbitals, they will overlap to form these equatorial let me use a different ink. It is sp2, तो इसमें ये equatorial hybrid orbitals बनाएंगे, right? And P and D combine to form the axial hybrid orbitals. Now, in terms of size and energy, यहाँ पर because P and D character ज़्यादा है as compared to these, you can intuitively now guess and understand that axial orbitals are slightly more elongated, are bigger in size, have a greater energy as compared to the equatorial orbitals. In case of sp3d, right, understand this bifurcation. You have sp2 plus pd, where the equatorial, इसमें ये भी चीज ध्यान रखना, the equatorial hybrid orbitals are formed by s, px and py, right, whereas these axial hybrid orbitals are formed by pz and dz square, right? So I'm showing you the axis ka orientation also. So along the vertical line, along this axis is the z axis. तो इसके along यहाँ पर आपका pz and dz square oriented है, and they are intermixing to give you these hybrid orbitals along the z axis. And in the xy plane, s and px py orbitals are intermixing. Like ये equatorial plane ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है और ये के अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से ये ड्रॉ किया हुआ है. तो ये आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझना है, राइट? अब अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसमें लाइक अभी क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन का कैसा रहेगा? अगर यहाँ पे क्लोरीन बॉन्ड करेगा तो वो किस तरीके से आ जाएगा?
लाइक क्लोरीन का p ऑर्बिटल इधर ओवरलैप करेगा, इधर ओवरलैप करेगा, इधर ओवरलैप करेगा, लाइक p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे होंगे विद दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। इक्वेटोरियल में कोई सा भी ये वाले को जो आ रहा है इस तरफ, इसको बाहर मान लो और इस वाले को पीछे मान लो। ऑलराइट, अब आपके डाउट्स एंटरटेन करते हैं एक एक करके। हाँ, तो यहाँ से sp3d हाइब्रिडाइजेशन से एक एक करके शुरू करते हैं। नाउ लेट मी नो योर डाउट्स, स्पेसिफिक डाउट्स। एक एक करके। सबसे पहले साहिल नाम बोलो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, इसलिए वो एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकता है डी ऑर्बिटल्स में। दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन इज कमिंग आउट। मतलब जैसे pf5 मिल रहा है, राइट, pf5 मिल रहा है, sf6 मिल रहा है, इनफैक्ट SO2 SO3 मिल रहा है, राइट, बट यू डोंट फाइंड समथिंग लाइक H2S। तो मिल जाता है क्योंकि H2S में भी आप नोटिस करोगे तो एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। H4S या H6S ये नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिलता है, राइट। ऑक्सीजन ऑक्टेट सर माय एक्सपैंड, क्वेश्चन वाज क्लोरीन ऑक्टेट एक्सपैंड कर पा रहा है। तो इनमें व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट दीज मोर और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर एबल टू गेट, are able to expand these octet, are able to excite the electrons of the central atom. तो सर वो s ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वो डायरेक्टली p ऑर्बिटल में शिफ्ट d ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है कि मींस टर्न वाइज होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपको देखो, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द वे इन विच इट इज हैपनिंग। यहाँ s का हॉप p में हो रहा है कि p का हॉप d में हो रहा है, that is not something which is going to make any difference, because what we want are 5 unpaired electrons for forming 5 bonds with chlorine. ओके सर। और सर ये एनर्जी लेवल्स आपने क्या बताया था? हाँ, तो इसके पहले मैं आपको, जैसे हमने sp sp2 sp3 लाइक हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने कैसा बोला था कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर साइज एंड एनर्जी, साइज शेप एंड एनर्जी, राइट। वैसे ही मैंने sp2 के बारे में भी बोला था कि जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दे विल बी आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ देयर साइज शेप एंड एनर्जी। एंड मैंने यही चीज sp3 के बारे में भी बोला था, that they are identical in terms of their shape, size and energy. बट यही चीज अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम वेव फंक्शंस की मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, तो वेव फंक्शंस की मिक्सिंग के पीछे की जो मैथ है, अगेन मैथ में तो मैं जा नहीं पाऊंगा आप लोगों के साथ में, बट मैं इतना जरूर हाईलाइट कर सकता हूँ आपके लिए कि इसके पीछे की जो मैथ है, उसमें जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उसमें से 2 बनते हैं pz और dz² का वेव फंक्शन मिलाकर, राइट। एंड यहाँ पर जो इक्वेटोरियल ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये s का, px का एंड py का वेव फंक्शन मिलाकर बनते हैं। सो दिस डिफरेंस मस्ट बी known to you, because as I said that in sp3d, right, the orbitals are not identical. इक्वेटोरियल आपस में आइडेंटिकल है, एक्सियल आपस में आइडेंटिकल है, बट इक्वेटोरियल एक्सियल आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। एंड एज यू कैन ऑल्सो नोटिस दैट बिकॉज एक्सियल के अंदर p एंड d कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, ये अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था, दैट hybrid orbitals have characteristics of the original orbitals, right। तो यहाँ पर p and d ऑर्बिटल का कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, इसकी वजह से एक्सियल ऑर्बिटल्स आर स्लाइटली मोर elongated, they are slightly larger than the equatorial orbitals. Why? Because of, you can say, greater p and d character, राइट। जैसे याद हो तो अपन ने लास्ट क्लास में कंपेयर किया था कि sp sp2 sp3 इसमें साइज बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेटर p कैरेक्टर।
ठीक है। ऑलराइट, सो आई थिंक आयुष आपका ये डाउट आंसर कर देता है। ओके, देन यश, यहां पर आप नोटिस करना इसमें यही ऐसा ही डायग्राम रहेगा, बस ये 3 एक साथ रहेंगे और ये 2 एक साथ रहेंगे, और ये 2 ज्यादा एनर्जी के रहेंगे, ये थोड़े से कम एनर्जी के रहेंगे। ये मैंने अलग से ड्रॉ करके नहीं दिखाया है यहाँ पर, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो एक्चुअल वाले रहेंगे 2, उनका साइज एंड एनर्जी इक्वेटोरियल से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, देन शिवांग का डाउट है, spin is a fundamental property of the electron, but when the electron is in p atom is excited, how does it change its fundamental property, that is spin? So okay, ऐसा नहीं है ना that spin cannot be changed when, let's say, 2 hydrogen atoms are also going to come to each other, close to each other, right? ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये आपस में पास में आएंगे, तो ऐसा नहीं है दैट स्पिन इनका चेंज नहीं हो सकता। स्पिन इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी हैज 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस, सो इट कैन बी इन द ऑपोजिट ओरिएंटेशन एज वेल। तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है दैट स्पिन ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इट इज नॉट जस्ट दिस केस, देयर आर मेनी अदर केसेस। इनफैक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ बॉन्डिंग, जब मैंने आपको बताया था, जब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद वी वुड रिप्रेजेंट द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑपोजिट स्पिन। उसके पहले वो सेम स्पिन या ऑपोजिट स्पिन के हो सकते हैं, एंड इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन दैट these changes, these excitations, these hybridization, these spin के changes, they all happen। क्योंकि ऐसे isolated atom में नहीं हो रहा है, only when एक atom के पास और atom आ रहे हैं, interaction हो रहा है, right, उसकी वजह से ये सब changes होते हैं। all right, then सुमित का क्वेश्चन है कि sp3d sp plus p2d हो सकता है क्या? अगेन इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस सुमित, लाइक आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये सब ऑप्शंस, बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना के आपको बता रहा हूँ। लाइक दीज आर समथिंग विच आर बेस्ड ऑन, एज आई सेड, द वेव फंक्शंस, राइट? अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो वेव फंक्शंस हैं ये आपस में मिक्सअप होकर हाइब्रिड ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तो इन वेव फंक्शंस की प्रॉपर्टीज कैसी हैं एंड हाउ दे आर इंटरमिक्सिंग, इसके पीछे का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज व्हाट इज गवर्निंग हाउ दीज hybridizations are going to happen. Of course, Abhi, because you are not familiar with the mathematical background, you can have certain such doubts like this. That's absolutely okay. However, what I would again request you to remember is that sp3d is a combination of sp2 and pd, and I would also request you to remember the orbitals. Okay. All right, then next question है यश का, will the energy of sp3d lie between the energy of all the 3 orbitals or any 2 or something like that? हाँ, सो आप ये सोच सकते हो ना, जो ये sp2 वाले रहेंगे इनकी s और p के बीच में लाया करेगी, p और d की एनर्जी, और सॉरी pd जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनकी p और d के बीच में लाया करेगी। बिल्कुल दैट सेम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैड वो यहाँ पर भी डेवलप होगी। ठीक है, ऑलराइट, देन अक्षत का डाउट है, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल पर एक्साइट होता है, स्टेप वाइज होता है, लाइक p and d? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अक्षत, एंड दैट डजंट इवन मैटर। लाइक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, इट कैन गो फ्रॉम s to d डायरेक्टली, ऐसे कोई स्टेप बाय स्टेप एक्साइटेशन का प्रीरेक्विजिट नहीं है। नाउ ओके, देन इसके बाद में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो तो हर्ष आपको आता ही है ना, PCl5 का स्ट्रक्चर TBP ज्योमेट्री रहता है। तो यहाँ पर अब क्लोरीन के एटम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था,
कि ये इसके फॉस्फोरस के हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, अब क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स आकर यहाँ पर ओवरलैप्स करेंगे एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट। ऑलराइट, देन एक और डाउट था इसका, किसका, हर्ष का। डज positive charge get induced on the central atom? That is what the background explanation is given in books, that to justify a d orbital ka hybridization. Also, as I said, again I am reiterating that this is a controversial part, that does this really account for d orbital hybridization? The answer is no, as per the newer theories. But because as I said that ये हमारे syllabus का part है अभी भी, तो हम लोग ये older version ही treat कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, then अक्षत आपका डाउट नहीं समझा मुझे, एक्साइटेशन एनर्जी डिफरेंस नहीं होता क्या, एज इन अच्छा, ठीक है। देन हाँ, अभी आगे हर्ष हम लोग और देखेंगे जब हम sp3, हमने अभी तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करा है, अभी हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। एंड यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर ऐसा इंटरचेंज मत करना कि अपनी मर्जी से इधर px और pz को इंटरचेंज कर दिया, नहीं नहीं, dz स्क्वायर के साथ में pz का ही मिक्सिंग करना है। So don't intermix orbitals according to your whims and fancies. Make sure that you remember that these are the orbitals that are participating in hybridization. ठीक है। Now, अब यहाँ पर नोटिस करना sp3d2 hybridization. Now sp3d2 hybridization, as you can guess, is a combination of 1s, 3p and 2d orbitals. एक मिनट, हाँ, 1s, 3p and 2d orbitals, giving rise to 6 sp3d2 hybrid orbitals that are arranged in square bipyramidal or octahedral geometry. Now in this case of sp3d2, the mixing of all the 6 orbitals happens in a uniform manner, and what we get are 6 identical hybrid orbitals. And in order to get this identical mix, can you take up a guess of which d orbitals should be hybridizing? Any guesswork from your side? मतलब तुक्का ही मारोगे, just by the shape and orientation of d orbitals, maybe you would want to take a guess. इसके पीछे की मैथ्स तो अपने को नहीं आती है, but just a guesswork. नहीं, सिर्फ एक हर्ष ने करेक्ट बोला है। Alright, so यहाँ पर नोटिस करना, the dz square and d x square minus y square orbital, they are going to undergo hybridization. ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। चलो, एग्जाम्पल आपका SF6 रहेगा, राइट। इन SF6 what we say is that सल्फर का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 3s2 3p4, राइट। ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट यहाँ SF6 के साथ में 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए क्या लगेगा, 6 बॉन्ड बनाने के लिए you will need 6 unpaired electrons. So what will happen,
these paired up electrons will get excited into the 3d orbital, and you will have these 6 unpaired electrons in these 6 orbitals, which will undergo hybridization, sp3d2 hybridization, to form, then to actually form bonds with the fluorine atoms. तो ये hybridized orbitals कैसे दिख रहे हैं, ये directly मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. Like if you remember, this was so not really a great diagram, so to say, but you remember the square bipyramidal or octahedral geometry, right? इसमें ऐसे, if you remember, हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, राइट? यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा इस तरीके से लिया हुआ है, राइट? सो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है? कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये एक्स, ये वाई एंड ये ऊपर वाला जेड. So इसमें now the mixing orbitals are again to be remembered over here, right? मैं in fact इनको अलग से highlight करता हूँ. P के तो तीनों orbital mix हो रहे हैं, but D के आपको ध्यान में रखने, D z square and D x square minus y square orbital intermix होंगे. Now you can also write the sp3d2 hybridization as a combination of sp2d plus pd, and जब sp2d लिखोगे तो उसमें s और p के साथ में, like as you can see in terms of the orientation, xy plane वाले orbitals हैं s px py and dx square minus y square, and जो z axis के along orbitals रहेंगे उसमें pz and dz square orbitals रहेंगे. Now this again is something which is resulting in, यहाँ पर notice करना, identical orbitals only, like the p and d character, and here also the sp and d character, they are giving rise to all these 6 orbitals being identical in terms of shape, size and energy. ठीक है? तो इसमें कोई भी इक्वेटोरियल एंड एक्शियल नहीं है, राइट? इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का डिस्कशन किया था, दैट इसमें देयर इज स्क्वायर बाइपिरामिडल में देयर आर नो इक्वेटोरियल एंड एक्शियल पोजीशंस, राइट? सो ये SF6 में ऑल बॉन्ड लेंथ्स बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल, राइट? तो इसमें ये जरूर ध्यान रखना डी ऑर्बिटल्स कौन से इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है? एंड अगेन as I said, please remember this. You might be having a lot of questions in your mind that why these orbitals, like why we are talking about these d orbitals only, why not any other combination, why can't be there any other possibility? Definitely, like you are absolutely right in terms of asking those questions because of the curiosity of the nature in which these orbitals are getting formed. Like you also think about these other possibilities, but भाई background जो mathematical treatment है वो हम लोग इसका देख नहीं रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर like forcefully समझने के लिए बोल रहा हूँ that please remember the d orbitals which are participating, ठीक है? एंड इसके जबरदस्ती डेप्थ में जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज अगेन न्यूअर लिटरेचर में तो ये थ्योरी वैसे ही डिस्कार्डेड है, बट बिकॉज हमारे सिलेबस में है हम लोग फिर भी आर मेकिंग पीस विद इट कि ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इट इज सिंपल टू ग्रास्प ओनली, टू रिमेंबर ओनली, नॉट समथिंग व्हिच इज एन अननेसेसरी लोड. नाउ हाँ, as you would have been noticing that यहाँ पर जो डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है that matters, right? ऐसा नहीं है कि मैं जब यहाँ पर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहा हूँ तो रैंडमली कोई से भी ऑर्बिटल्स किसी भी ऑर्बिटल के साथ में इंटरमिक्स कर रहा हूँ
राइट। यहाँ पर there is this spatial orientation, जैसे pz and dz square, they are along the same axis, so they are being clubbed together. Px, py and dx square minus y square are being clubbed together to get this answer. ठीक है, this is your SF6 का sp2d plus pd giving sp3d2 hybridization. ठीक है, अब एक लास्ट hybridization पे फोकस कर लो, which is sp3d3. Now this sp3d3 hybridization is as you would have guessed, 1s, 3p and 3d orbitals mixing to give 7 sp3d3 hybrid orbitals, and these hybrid orbitals are arranged in pentagonal bipyramidal geometry so as to minimize the repulsions. Now again, any guesswork what the d orbitals could be in terms of possible options? थोड़ा ज्योमेट्री के हिसाब से भी सोचो, पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, राइट। तो इसमें एक इक्वेटोरियल प्लेन होता है एंड दो एक्सियल पोजीशंस भी होती हैं, तो व्हाट वुड मेक मोर सेंस? हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, दे आर एबल टू कम अप विद एन आंसर. राइट, सो यहाँ पर like IF7 का एग्जांपल है, बट हाँ, आई विल straight away come to the orbitals which are getting involved. So dxy, dx square minus y square and dz square. These are the orbitals. You might have come up with the guess about some students did put in a guess कि dxy, yz and zx भी तो ले सकते थे, right? But the thing is, ये जो axial वाले हैं, right, you can see that एक तो ये प्लेन में रहेंगे पेंटागन, right, and उसके वर्टिकल ऊपर नीचे दूसरे लोब्स हैं, right. तो यहाँ पर the thing is that if I would have taken say dy or dyz या zx, तो उनमें क्या है, y component and x component भी रहता, just along z axis रहने के लिए you have these pz and dz square का combination. ठीक है, so that is what is, you can take a hint from the orientations. Of course the mathematical treatment is what lies behind this, but yes, do remember यहाँ पर again not all identical in terms of energy and even size, right. Again, if I would ask you, यहाँ पर कौन से orbitals का energy level ज्यादा रहता, equatorial का कि axial का? Any guesswork from our previous understanding? हाँ, correct यश, right. जैसे यहाँ पर मैं in terms of energy आपसे पूछूंगा या फिर size पूछूंगा, तो correct. Equatorial are going to be longer, equatorial are going to be having more D characteristic, so they are going to be longer, they are going to have a greater size, greater energy as compared to the axial ones. ठीक है, एंड ये चीज आप लोगों ने उस टाइम पे भी समझी थी जब हम लोग IF7 की ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे कि ये स्ट्रेन्ड एंगल्स रहते हैं, इनके रिपल्शन की वजह से इनका लोब ज्यादा बड़ा रहता है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी रहती है इन IF7 एज कंपेयर टू द एक्सियल वन.
ठीक है, so this time we are understanding it from the perspective of the characteristics in the hybrid orbitals, right? So as a quick recap, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करना, हम लोगों ने sp3d हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करी है, जिसमें we have sp2 plus pd का कॉम्बिनेशन, एंड इसमें the axial bond length is more than equatorial bond length. Axial lobes are longer than the equatorial lobes because of a greater, you can say, p character or d character as compared to the equatorial orbitals, right? sp3d2 mein, like what we are seeing is that in terms of the combination, we have this s, px, py and d, x square minus y square, forming the four lobes in the xy plane, and then z axis ke along we have pz and d square, pz and dz square, forming the hybrid orbitals. And in this case it kind of balances out. These orbitals come out to be equal in terms of their shape, size and energy, right? Despite having a different combination in the background, like यहाँ पर maybe p and d z square का जो contribution है वो s, px, py and d x square minus y square के combination से equal हो गया. That's why we are finding this kind of all orbitals identical kind of orientation. ठीक है, had it been something else, so मतलब had it been that there would have been some difference, then हो सकता है कि SF6 में axial bonds longer होते, equatorial bonds छोटे होते हैं, ऐसा कुछ मिलता, but ऐसा मिलता नहीं है. What we find is actually that in SF6 all these bonds are identical only, whereas in sp3d3 hybridization what we are seeing is that pentagonal bipyramidal arrangement hai of these hybrid orbitals, and the equatorial orbitals are having a greater d character, leading to a greater energy or a greater size as compared to the axial orbitals. ठीक है, so एक पैटर्न आपको समझ में आया जहां पर ये d ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, नाउ 8 मॉलिक्यूल्स का भी रहता है वैसे हर्ष, मतलब there is something called as square anti-prismatic, but we'll let it be. We'll not go it because it's something जो कि मतलब काफी rare kind of an example है. एक दो गिने चुने examples हैं उसके, which we generally don't find in the P block as well. Like those are some select examples. So we'll stick with the ones that we anyways are stretching the syllabus, तो उसमें कहीं पर जाके तो boundary establish करनी पड़ती है ना, so that is where we draw the line. हाँ, equatorial longer क्यों है यहाँ पर सुमित? Because of the greater in sp3d3, the greater d character that is coming in these equatorial orbitals. ठीक है, आपको इतना तो पता ही है ना, sp d orbitals में d orbitals का साइज बड़ा होता है, राइट? s का छोटा होता है, p का उनसे बड़ा होता है, d का उनसे ज्यादा होता है. तो जो ये कंबाइनिंग ऑर्बिटल है उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आते हैं. ठीक है, now these are the ones which are you can say the more common examples. Of course, if you get into more details of hybridization, there are more examples which are explained by some other hybridizations also. जैसे in fact यहाँ पर आप notice भी करोगे that if you try to look at hybridization, you might come across some d-sp hybridizations also, जो d block के elements के लिए रहती हैं, but अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे. ठीक है, we are primarily focused on p block, and here we have these sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 and sp3d3 hybridizations only. ठीक है, there are other combinations also, will not go there. All right, now
अभी तक आप नोटिस कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। आप लोगों ने कुछ सिलेक्ट हाइब्रिडाइजेशन समझ ली है एंड उनके पीछे के इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स भी समझ लिए हैं। नाउ अभी तक जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था उनमें मैं बता रहा था दैट लेट्स से IF7 का एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें बता रहा हूँ कि ये हाइब्रिडाइजेशन है। However, in future now you yourself can predict the hybridization of an atom in a molecule, right? आपको लोएस्ट स्ट्रक्चर पता है, ये इसकी प्रीरेक्विजिट रहेगी, right? Correct. Lowest structure is a prerequisite. अगर आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाया तो फिर आपका हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है। तो किस तरीके से रहेगा, आप पहले लोएस्ट स्ट्रक्चर बना लो कंपाउंड का, ठीक है, फिर जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है कि उस एटम के ऑर्बिटल्स कैसे हाइब्रिडाइज हुए होंगे, तो आप उस एटम के ऊपर फोकस करो एंड उस एटम का समथिंग कॉल्ड एज स्टेरिक नंबर निकालोगे। नो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? ये जो एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एंड उसी एटम पर कितने लोन पेयर है, उन दोनों को आप एड अप कर दोगे and once you add up you get something called as steric number. Now corresponding to the steric number it will have the following hybridizations. जैसे अगर 2 स्टेरिक नंबर है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3 and this is something which I'll make you practice also, right? So for example अपन ने थोड़ी देर पहले C2H2 का डिस्कशन किया था, like this is what we started with C2H2. तो इसमें आप नोटिस करोगे if I ask you the steric number of this carbon atom, what is the steric number? It is the number of sigma bonds that are made by this carbon atom. So it is making only 2 sigma bonds, ठीक है, sigma bonds not total bonds, ठीक है, sigma bond के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, राइट हैंड साइड पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड इज 1 sigma and 2 pi, so you don't need to count the pi bonds, only sigma bond पे फोकस करना है। तो 2 sigma bond है, then are there any lone pair on this carbon? The answer is no, there aren't any lone pair, तो इसका steric number कितना हो गया 2, implies इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, ठीक है। So this is the way in which you can understand calculation of hybridization. एक थोड़ा सा एक different सा example लेते हैं. So let's say ammonia, right? Ammonia का lowest structure कैसा है? It has got a lone pair, right? Hydrogen, hydrogen and hydrogen on top of it, right? And again, if I do the counting of the steric number, there are 3 sigma bonds and 1 lone pair. So the steric number is 4. That means that the hybridization is sp3, right? Sorry, just give me a minute. राइट, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक अ लिटिल बिट ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। लेट्स से CH3COH एसिटिक एसिड, राइट। सबसे पहले तो इसका लो स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
राइट। इस तरीके से इसका लो स्ट्रक्चर रहेगा। नाउ अब जो भी मैं ये रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ उन सब एटम्स का मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या रहेगा फटाफट। स्टेरिक नंबर अगर 1 है तो आप उसको हाइब्रिडाइज या नॉन हाइब्रिडाइज भी ले लोगे तो चलेगा, मतलब बोथ ऑफ देम विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। मतलब जैसे स्टेरिक नंबर 1 मतलब यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, राइट, एंड कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइड्रोजन का ही एटम रहता है। राइट, कैसा रहेगा ये? दिस कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसके, 0 लोन पेयर। ऑलराइट, व्हाट अबाउट दिस कार्बन एटम? इसका क्या रहेगा? इट हैज ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 0 लोन पेयर, तो दिस वन विल बी sp2 हाइब्रिड। ठीक है। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? it has got 1 sigma bond and 2 lone pairs, इसके अराउंड 2 लोन पेयर रहेंगे, तो स्टेरिक नंबर 3 ये आपका हम बोल रहे हैं sp2 हाइब्रिड। राइट, व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन? राइट, इसके बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड और इसके 2 लोन पेयर रहेंगे। राइट, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर 4 आ गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर अभी? sp3। ठीक है, इस तरीके से हम इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, आपने अभी ऑर्गेनिक में रेजोनेंस आगे पढ़ना शुरू कर दिया है क्या? ऑर्गेनिक में आगे रेजोनेंस का डिटेल? अच्छा, सिर्फ IUPAC ही पढ़ा है। ठीक है, पढ़ लोगे तो उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन कंट्रोवर्शियल लगेगा आपको, लगेगा नहीं, मतलब इट इज नॉट कंट्रोवर्शियल, इट इज समथिंग जो कि अभी आपको आइडिया नहीं है बट बाद में आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में सिखाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पर जो एक लोन पे रहेगा वो एक्चुअली रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, समथिंग कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन, जो आप बाद में देखोगे। मे बी सम स्टूडेंट्स हु वुड हैव डन KVPY के लिए सम लेक्चर्स, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। बट हम लोग अभी बॉन्डिंग का एकदम बेसिक आइडिया लेंगे एज पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। आपका इन डेप्थ जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो आपका GOC में कवर होगा आगे आगे, पर ठीक है, अभी के लिए इतना एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, नाउ as I said, just for the sake of clarification, because many students actually come up with this doubt. The doubt is that there are these DSP to DSP3 hybridizations also. So what is it that we have not studied? But again, understand, वो D ब्लॉक के एलिमेंट्स में होता है। लाइक अगर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है तो उसमें कैसा हो रहा होगा कि N-1D would be mixing with NS and NP, like lower shell का D orbital would be mixing with higher shell का S and P, and that's why nomenclature में फिर D पहले लिखने में आएगा, बाद में SRP लिखने में आएगा, एंड ये D ब्लॉक के एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होता है। अभी यहाँ पर हम लोग P ब्लॉक के एलिमेंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, एंड इसमें 3s 3p के
बाद वाला 3D ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग, दैट्स व्हाई इन द रिटन फॉर्म हम sp और उसके बाद d में जाते हैं, ठीक है। इसमें भी एज आई सेड दिस इज व्हाट आवर फोकस वुड बी, ठीक है। हाँ हाँ, मैं स्ट्रक्चर के बारे में आऊंगा अभी, लाइक देयर आर अ होल होस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आल्सो, क्योंकि अब मैं स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन थोड़ा और एक्सपैंड कर सकता हूँ, बिकॉज नाउ आई डोंट नीड जस्ट वन central atom के examples. Now I can have more complicated examples also. इनका भी मैं अब डिस्कशन आप लोगों के साथ में करूंगा। एंड आंसर्स जो VSEPR से आएंगे और हाइब्रिडाइजेशन से आएंगे अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आपकी इच्छा है तो आप VSEPR यूज करके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप हाइब्रिडाइजेशन यूज करके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो। सो दोनों से आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना हाँ बोलो सुमित। हेलो सर। बोलो। सर हम लोग SP3D को लाइक ऐसे डी SP3 ऐसे लिख सकते हैं ना? नहीं, वही तो मैं मना कर रहा हूँ ना, दैट वी आर फॉलोइंग दिस sp3d बिकॉज सेम शेल के ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्सिंग, इसलिए 3s 3p 3d के। अगर आप देखोगे यू विल कम अक्रॉस हाइब्रिडाइजेशन लाइक dsp2, ऐसा एक हाइब्रिडाइजेशन बहुत कॉमन मिलेगा आपको। तो उसमें क्या हो रहा होगा, n शेल का s और p n-1 शेल के d के साथ मिक्स हो रहा होगा, बट ये मिक्सिंग हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये सब डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में मिलते हैं। सो दैट इज सर वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस। यस, सॉरी डाउट था हाँ सर। स्टेरिक नंबर से हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी पता चलता है ना? हाँ, सो स्टेरिक नंबर से आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन से अभी आपने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि कैसे ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट रहता है। मैं वही एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ अभी, लाइक इसके जस्ट बाद में ये जहाँ पर with the help of these hybridizations I'm going to further elaborate on the shape of molecules, right? So we'll start with this example that we have here just below with us. इसमें you have this kind of a example with you, and before I start elaborating on it, my question is the molecule planar? Now इसका आंसर VSEPR से नहीं आएगा, इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन से ही बेटर आ पाएगा। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू नाउ टेक अ गेस एट इट और टेक अ अटेम्प्ट एट इट। मतलब आंसर कर लोगे, यस या नो में से गेस करना है, बट थोड़ा सोच के ही करना।
All right, some of you have guessed it as a planar molecule, and very few of you have guessed that it is non-planar. Okay, so let's see. What will it be? The answer is that this molecule is non-planar. VSEPR से नहीं strike होगा, right? In fact, यहाँ पर let me actually remove this only, otherwise आप थोड़ा सा confused रहोगे. ये मैं अलग से एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगा. I'll just hide this one. All right, so यहाँ पर अब आप नोटिस करो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहेगा. सो C2, अब यहाँ पर देखना, एज पर VSEPR, राइट, व्हाट यू माइट से इज दैट ओके, ये कार्बन जो सेंट्रल वाला है, राइट, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, तो इसके अराउंड लीनियर 180 डिग्री. ठीक है, फिर ये जो दूसरे कार्बन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं. वन 180 डिग्री. वाई? बिकॉज ये एज पर VSEPR बता रहा हूं मैं, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0. एंड यहाँ पर ये दोनों जो कार्बन है, इसके अराउंड भी लाइक यू कैन से दैट ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगा. ठीक है, बॉन्ड पेयर 3 रहेंगे, लोन पेयर 0 रहेगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, राइट. हो सकता है ये फ्लोरीन भी सेम प्लेन में हो, या फिर हो सकता है कि ये फ्लोरीन अंदर बाहर हो, राइट. अब है ट्राइगोनल प्लेनर, बट हम कैसे इसमें बताएं कि विच इज द करेक्ट वन, राइट. इट कुड बी दिस वन, कि यस सबके सब सेम प्लेन में है, और इट कुड बी समथिंग लाइक दिस इन विच से ये फ्लोरीन स्क्रीन की प्लेन में नहीं है, ये एक बाहर आ रहा है और एक ये अंदर जा रहा है. ठीक है, समथिंग ऑफ दिस नेचर. तो फिर तो ये सेम प्लेन में नहीं रहे. डिलेमा समझ में आया आपको VSEPR का? अच्छा, अब नोटिस करना that how we are going to be able to overcome this dilemma using VBT and the concept of hybridization. All right. So using VBT, नोटिस करना अब मैं किस तरीके से वर्क करूंगा. आई हैव थोड़ा सा मैं बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूं. एंड क्योंकि मुझे आंसर पता है कि ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसलिए मैं पहले ही ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ.
अदरवाइज मैं बाद में ही बना सकता हूँ, बट दैट्स ओके। अब नोटिस करना, सबसे पहले ये सेंट्रल कार्बन एटम जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे, क्या रहेगा? 2 सिग्मा बॉन्ड्स 0 लोन पेयर, तो ये sp हाइब्रिड हो गया। नाउ which p orbital would you want to hybridize? You have a choice, कोई सा भी कर सकते हो, राइट? आपसे तो मैं चॉइस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था, मुझे जो पसंद है मैं वो लूंगा, so I would go with pz. All right, so assuming this to be the z axis, this to be the x axis and this to be the y axis. So अब ये आप नोटिस कर रहे हो कि कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड z एक्सिस के अलोंग बन रहे हैं, राइट? अब ये एक्सिस z एक्सिस है और इसके अलोंग सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, और ये हाइब्रिड बॉन्ड्स ही बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो मैंने ये z एक्सिस अज्यूम करके यहाँ पर फिक्स कर लिया कि ये pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है, ठीक है? Why? Because I chose this as the internuclear axis. That is what fixed this. ठीक है? All right. So अब यहाँ पे नोटिस करना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आउट ऑफ द डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई है, ये सिग्मा बॉन्ड ये मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है? This one is making this sigma bond the hybrid orbital. Okay. अब फ्री एज एन नॉन हाइब्रिडाइज्ड कौन से ऑर्बिटल्स रह गए? राइट, एक रह गया px और एक रह गया py, राइट? दीज आर नॉन हाइब्रिडाइज्ड। अब ये मेरे पाई बॉन्ड बनाएंगे, राइट? ये याद है ना, अपन ने सीखा था कि प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, तो अब एक इस तरफ पाई बॉन्ड बनाएगा और एक इस तरफ, एक लेफ्ट वाले कार्बन के साथ बनाएगा, एक राइट वाले कार्बन के साथ बनाएगा। आपका चॉइस है, आपको कौन सा किसके साथ बनाना है, राइट? सो मैंने चूज करा कि लेफ्ट वाला के साथ में px जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर लेफ्ट वाले के साथ में px पाई बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहना चाहिए ताकि उसके साथ में पाई ओवरलैप हो सके? px के साथ में किसका पाई ओवरलैप हो पाएगा? परफेक्ट, px ही रहेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया कि px के साथ में यहाँ पर ये पाई ओवरलैप हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ दैट ये मेरा पाई किसके बीच में बन रहा है? px के बीच में बन रहा है, ठीक है? ऑलराइट, तो यहां पर अब आपको समझ में आएगा कि यू कैन काउंट कि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, राइट? विच हाइब्रिडाइजेशन इज हियर? sp2. and can you now guess कि which orbitals would be hybridizing? अगर px है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है, तो फिर ये sp2 में कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे होंगे? py and pz,
क्योंकि px तो पाई बॉन्ड बना रहा है ना भाई, px पाई बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर कौन से px एंड सॉरी y एंड z हाइब्रिडाइज हो रहे होंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? राइट, तो फिर ये दोनों जो फ्लोरीन रहेंगे, राइट, ये दोनों फ्लोरीन कौन से प्लेन में रहेंगे? YZ प्लेन में। राइट, सो ये दोनों फ्लोरीन YZ प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे विद द कार्बन एटम। राइट, ये समझ में आया आपको? ऑलराइट, अब नोटिस करना, बिकॉज px इस तरफ पाई बॉन्ड बना दिया है, तो अब राइट हैंड की तरफ जो पाई बॉन्ड बनेगा यहां पर, अब ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये कौन बनाएगा? py ही बनाएगा। राइट, तो यहां पर ये py और py का लैटरल ओवरलैप होगा, तो यहां पर यू कैन अंडरस्टैंड py के साथ में ही पाई बॉन्ड बन रहा है। तो नाउ अब यहां पर py पाई बॉन्ड बना रहा है, प्योर रह रहा है, तो फिर यहां पर जो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट, इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहेंगे? करेक्ट, x एंड z। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कौन से जाएंगे अब यहाँ पर? x एंड z। तो ये जो फ्लोरीन रहेंगे ये कौन से प्लेन में रहेंगे? राइट, दे वुड बी इन द एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है, ये समझ में आया? ये अंदर बाहर रहेंगे। ठीक है, एंड ये मैंने उल्टा बना दिया, इसको मैं यहाँ पर x बोल देता हूँ और इसको y बोल देता हूँ। तो स्क्रीन के प्लेन में रहेगा ये yz प्लेन और ये एग्जैक्ट प्लेन अंदर बाहर कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया दैट दिस इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है, समटाइम्स इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ चॉइस एंड कंस्ट्रेंट। You start with choice and then you are bound by some constraints, and that is what then will help you decipher the shape of this kind of a molecule with the help of valence bond theory. समझ में आया? देखो ना यहाँ पर ये YZ प्लेन तो स्क्रीन का प्लेन है, बट XZ प्लेन कौन सा है? अंदर बाहर का ही प्लेन है ना, दैट्स वाई ये अंदर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? एक एग्जांपल और कराता हूं मैं, so as to help you take another attempt at this. ठीक है, अब नोटिस करना, हाँ आप चेंज कर सकते हो, मतलब यू कुड हैव टेकन अ चॉइस ऑफ कि यहाँ पर px की जगह मैं py ले लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले फ्लोरीन xz प्लेन में आ जाते और फिर ये वाले फ्लोरीन yz प्लेन में आ जाते, सो दैट्स ओके, यू कुड हैव एक्सरसाइज दैट चॉइस।
Sir, हाँ बोलो आयुष. so all of this is based on our initial assumption that the pi bond, sigma bond between the two carbon atoms lies along the pz internuclear axis, right? हाँ, सो देखो फर्स्ट चॉइस यहाँ पर देखना मेरा कैसा था. फर्स्ट चॉइस मैं एक बार सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके साथ रीआइटरेट कर देता हूँ. दैट फर्स्ट चॉइस क्या था मेरा? z axis along carbon carbon. ठीक है, that was my first choice. What it led to was a constraint. What was the constraint? That pz of central carbon atom, in fact all the carbon atoms, but ठीक है फोकस करते हैं central carbon atom पर. pz of central carbon atom to hybridize, right? Why? Because sigma bonds will be formed कैसा? Along internuclear axis by hybrid orbitals. Right? समझ में आ रही है? पहला चॉइस कंस्ट्रेंट का सेट था. फिर उसके बाद में वापस से चॉइस आपको मिली, मतलब ये pz तो हाइब्रिडाइज होगा और px एंड py पाई बॉन्ड बनाएंगे. अब यहाँ पे चॉइस क्या लिया अपन ने? LHS कार्बन एंड सेंट्रल कार्बन का पाई बॉन्ड, राइट? LHS कार्बन एंड सेंट्रल कार्बन का पाई बॉन्ड बिटवीन px एंड px. ये हमने चॉइस ली. तो इससे अब क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ गए? अब इससे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ गए, राइट? क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ गए कि अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कार्बन will be sp2 hybridized with the pz and py, right? And as a result the left hand side fluorine atoms are in yz plane, right? और भी कंस्ट्रेंट आ गया इससे. अब क्योंकि बचा तो एक ही p ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम का, py, राइट? तो राइट हैंड साइड कार्बन एंड सेंट्रल कार्बन का पाई बॉन्ड will be what? Between py and py, right? समझ में आया? And this meant that right hand side carbon will be sp2 with which p orbitals? pz and px. तो ये राइट हैंड साइड के फ्लोरीन एटम्स आर इन एग्जैक्ट प्लेन. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये थ्योरी थोड़ा सा और डेप्थ में स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है.
ठीक है, अदरवाइज तो ठीक है, मतलब you can now use this concept of hybridization to determine or understand the shapes of even more molecules one by one, right? जैसे for example benzene, राइट, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इसका लो स्ट्रक्चर आपको अगर याद है तो इसमें all carbon are sp2 hybridized, right? So all atoms, like even the hydrogens with the carbon, all atoms are in same plane, right? It's a completely planar molecule. हाँ, as such तो इसमें हाइब्रिड रहता है स्ट्रक्चर, बट मैं जो दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स है, राइट, उनसे आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज बोथ द कैनोनिकल फॉर्म्स आर आइडेंटिकल ओनली, तो ये हाइब्रिड भी उन्हीं से बन रहा है, राइट? सो अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स कैन बी dealt with this. अच्छा, if I ask you about C6H12 cyclohexane, right, is this a planar molecule? In your knowledge, will this be a planar molecule? Right, this will be non-planar. Reason being, if you will look at the structure of it, तो इसमें कार्बन एटम्स एक प्लेन में आप बोल सकते हो, बट देन द हाइड्रोजन एटम्स विल बी लाइक अंदर बाहर, ठीक है, मतलब जैसे ये हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, ये हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, ऑल द कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, मान लो ये हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन अंदर जा रहा होगा, ये एक हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन अंदर जा रहा होगा, ये हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन अंदर जा रहा होगा, ठीक है। राइट, यहाँ पर कार्बन एटम्स आर इन अ प्लेन, ठीक है, बट एंटायर मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर,
ठीक है, ऑल कार्बन हेयर आर sp3 हाइब्रिड, राइट। सो हर एक के अराउंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। इनफैक्ट हाँ, मतलब इनफैक्ट नहीं, कार्बन एटम्स भी सेम प्लेन में नहीं रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, माय बैड, इसमें भी एक्चुअली आइसोमर्स ही रहेंगे आपके, आई वुड से नॉन प्लेनर ओनली। हाँ, इसमें भी आपका, आप सीखोगे जब आइसोमेरिज्म आएगा तो उसमें आपको इसका बोट फॉर्म एंड ऐसा, I forgot what was that called. There was another form. ठीक है, so all the carbon are sp3 hybrid. The molecule is non-planar. All right. Then एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं just before we close today's lecture. So ICl2 minus, give the hybridization of I and shape of ion, shape of this ion or shape of this molecule कैसा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि most of the complex molecule are going to be non-planar, but there are some examples that you are going to come across. हाँ, तो सबसे पहले इसमें आप लो स्ट्रक्चर बनाओगे, राइट। लो स्ट्रक्चर में आपको रियलाइज होगा दैट right, you could have thought about this. आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज आप पुट कर दोगे तो फिर इस पे आप काउंटिंग करोगे तो सिग्मा बॉन्ड तो 2 आ जाएंगे एंड लोन पेयर 3 आ जाएंगे, तो इसका मतलब दैट दिस विल बी sp3d hybridized, right। sp3d hybridized में iodine के around you will have TBP arrangement, right, and lone pair कहाँ पे जाएंगे अब इसमें, right, the lone pair will go to these equatorial positions, right, and chlorine would be at the axial position, right, and negative charge हम लोग ऐसे bracket में outside the bracket भी represent कर सकते हैं, right, so the shape will be linear, right? lone pair तो दिखेंगे नहीं, दिखेगा तो सिर्फ atoms, so your hybridization is sp3d and the shape of the ion is linear only, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं और कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, आप Cl पे भी चार्ज रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। देन आपको डेटिव बॉन्ड बनाना पड़ेगा ऑन द आयोडीन एटम, द आंसर विल रिमेन द सेम, इट वोंट चेंज, ठीक है। थोड़े से और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एग्जांपल्स विद हाइब्रिडाइजेशंस, लाइक आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स इन होमवर्क ओनली, वो आप प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में लेके आओ एंड देन हम आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, ऑल राइट, टेक केयर।